हेलो एंड वेलकम टू अ सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ पॉप रैप। मैं ये हर एपिसोड में बोलता हूँ, आई नो, बट ये एपिसोड मेरे लिए इतना स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं, आई हैव लुक्ड अप टू हिम जब से मैंने कॉलेज में कदम रखा था। वही मैं कहानी ऑफ माइक सर को बता रहा था। पहले मैं क्योंकि वो स्क्रीन पे आ गए होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू वेलकम मानव कौल सर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। मैं वही सर आपको बता रहा था और ऑडियंस को भी बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में थिएटर सोसाइटी में आया ही था, तो हम लोग प्ले राइट से बात कर रहे थे कि हम आपका प्ले अडेप्ट कर पाएँ, आप हमें परमिशन दे दीजिए। मेल कर रहे थे सबको, तो कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। कुछ पैसे की बात कर रहे थे, कुछ ये वो फलाना ढिमका बात हो रही थी। बट देन उसी दौरान आपने अपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी कि मेरे प्लेस सबके लिए फ्री हैं अडेप्ट करने के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, सबको मुझे मेल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड योर नेम कि ओ मानव सर ने ये कर दिया। एंड इट वाज सच अ खुशी की लहर हमारी सोसाइटी में, बिकॉज आर सोसाइटीज कन्वीनर्स फेवरेट प्ले वाज इल्हाम. And he said, and he called me because I was like in the first year, he was the third year. He's like, स्नेहिल ये रहा लिंक, यहाँ से इल्हाम के सारे प्रिंट आउट्स निकाल के लाओ, 6 कॉपीज चाहिए, 6 सेट्स चाहिए, we'll be making इल्हाम. And that is how we, like that is how I at least got to know about you. And then the second thing was, ओ ये तो जजंतरा मंत्रों वाले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने वो चीज़ करी. वो एक बहुत बड़ी बात थी. एटलीस्ट उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि कितनी चीज़ें आसान हो गई हैं और कितना ही बढ़िया स्टेप एज अ प्ले राइट आपने लिया है. First of all, thank you so much for that. And for this episode, we'll be talking about a bunch of stuff. His new book that he is out with, which is called Titli, उसकी कॉपी मेरे पास यहाँ पर है. जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन मैंने खरीद ली थी. इसके अंदर मैंने बहुत सारी मार्किंग्स करी हुई हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी बातों के बारे में बात करनी है. मेरे माइंड से शायर निकल ही नहीं रही है. नहीं निकल रही है मेरे माइंड से शायर. But how beautifully can someone talk about such a serious topic? We're going to talk about this book, of course. We're going to talk about the movies that you've done, Music Teacher, The Fame Game, Ajeeb Dastan, इन सब के बारे में, of course जजंतरम मंत्रम के बारे में, and your plays, एंड जो कुछ 2-4 चीज़ें मैंने नोटिस की आपकी लिखाई में और आपके काम में, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग ऑन दिस एपिसोड. एंड यू गाइज stay tuned on this episode because a bunch of stuff is coming your way. Hi, this is Cyrus Rogan Brocha, pyar se Rogues. I've come up with a brand new idea. It's a premium product called Club Cyrus Says. It's an offer open just for you. Let me tell you about the product. We've got exclusive Cock and Bull episodes just for you. That's right, just for you. That means others don't get to see it. Also, you get exclusive footage, extra bits, the uncut version of the interviews with celebrities. And these are huge celebrities, not small-time celebrities. Only the big guys come on the show. So you'll get the exclusive bits that nobody else gets. The extra tidbits, special stuff, uncensored stuff you don't want to put out. That's just for you. And for our audio listeners, you get special ad-free content and early access to interviews and sessions and podcasts which nobody else will get. You'll get it first. You're the first people. You're Neil Armstrong. You're Edmund Hillary. You're whoever discovered India. You're that. And by becoming an exclusive member of Club Cyrus Says, you get the power. We transfer the power to you and you become the producers and you will decide what content or what happens on that show. You are the masters and we are your... We can't use words like that. People who work for the masters, basically. So guys, get in. Special audio features include... I forget. I can't remember what the hell. Welcome back to this episode of Pop Rap, which again, as I said, is a very special episode. Sir, first of all, congratulations on the book. थैंक यू. It's a beautiful, beautiful book. ये मैंने दूसरी बारी कल रात को ख़त्म करी है बिकॉज ऑल्सो जिसमें जैसे आप इस पर कोविड की बात से स्टार्ट करते हो, वो बात इतनी पर्सनल हो गई है पिछले कुछ टाइम में. जैसे अभी न्यूज़ आ रही थी कि वापस से कोविड हल्का फैल रहा है. एंड लाइक कमिंग फ्रॉम अ फैमिली दैट लॉस्ट पीपल इन कोविड, and that too very close relations. My grandfather I lost to COVID. Oh, I'm sorry. And when I read this,
पहली रीडिंग में तो आई क्राइड, बिकॉज वो मंजर एक के बाद एक आंखों के आगे आने लग गया था जिस तरीके से आपने ये लिखा है. हाउ वाज इट राइटिंग अबाउट सच अ ग्रेव इशू? बाय द वे कोविड के बारे में नहीं है बुक, हाँ, जस्ट बाय द वे, हाँ, इट्स जस्ट द स्टार्ट. पर आपने जब वो लिखना स्टार्ट किया, जब इस टॉपिक के बारे में आपने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए, वो कैसी जर्नी रही आपकी इस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए? आई थिंक लास्ट 2-2.5 साल से 3 साल से मेरे हिसाब से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इस प्लैनेट पे होगा जिसने डेथ के बारे में सोचा नहीं होगा. या हम सब ने अपने अपने तरीके से डील किया है. एंड मैं एक्चुअली एक पॉडकास्ट ही सुन रहा था अपने हाँ. कोविड के दिनों में, एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली लिसनिंग टू पॉडकास्ट. तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा राइटिंग की पॉडकास्ट, राइटर्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ रहा था. तो तभी मुझे पता लगा कि देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जिन्होंने राइटर्स ने लिखी हैं अबाउट डेथ. एंड सडनली आई गॉट इंट्रिग्ड एंड आई सेड कुछ पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने सिमोन दे बोवार की एक किताब पढ़ी थी, अ वेरी इजी डेथ विच हैड लाइक ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी. एट द सेम टाइम मैंने पता किया कि मैंने बहुत सारी एक्चुअली लाइन से किताबें पढ़ रखी हैं और मेरे सब लाइब्रेरी में, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट व्हाइल आई हैड कोविड. तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि लास्ट किताब मैंने नाया की पढ़ी थी जब मैं जूझ रहा था एक रात, जब ऑक्सीजन कम होती है आपकी और आप अकेले रहते हैं और एंड यू फील लोनली फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक थिक लोनलीनेस. तो मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस किताब की वजह से आई वॉज फीलिंग फाइन, आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी वन, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ someone else's death and someone else's loss, not my own. I was not thinking about me, my heartbeat, my out of breath वाला कुछ नहीं होना था. तो मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि when you invest yourself in something else rather than keep thinking about yourself, that will give you anxiety and breathlessness. So उसके बाद अचानक क्या हुआ कि मैंने नाया किताब पढ़ी, मुझे अच्छी नींद आई, मेरे को नाया का सपना आया, एंड मैंने उनको कभी देखा नहीं था नाया को. तो मेरे को लगा कि ये क्या था, एक अजीब सा सपना. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग दैट, बिकॉज मैं लिखता बहुत हूँ. तो मैंने उस सपने को लिखा, मैंने उस सपने को एलैबोरेट करने लगा, मैं और लिखने लगा. फिर जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म हुआ और थोड़ी सी हमको फ्रीडम मिली, फर्स्ट थिंग आई डिड वाज जस्ट हिट द माउंटेन्स एंड आई वेंट टू लैंडोर. एंड वहाँ पे मैंने और एलैबोरेट करना चालू किया, एंड आई थॉट आई कैन एक्चुअली मेल अप, बिकॉज मैंने उनका ईमेल आईडी कहीं से ले लिया था, मेघा की वजह से मुझे मिला था. एंड मैंने उनको मेल किया, बहुत समय इंतज़ार करता रहा, एंड दैट इज़ द बुक. सो द आइडिया इज़ एक होशंगाबाद में पैदा हुआ मैं, मतलब पला बड़ा कश्मीर में पैदा हुआ बच्चा, बम्बई आके एक स्मॉल टाउन, मतलब गरीबी रेखा से लटका हुआ एक आदमी जब पहुंचता है और अचानक एक सोचा डेनमार्क की एक सबसे बड़ी राइटर को उसने मेल किया है उसका सपना देख के, और सोचा कि एक दिन डेनमार्क जाएगा और लिखेगा. दैट वाज लाइक, हम किसी के लिए भी ऐसा है नहीं कि होगा. तो मुझे हमेशा पता था कि ये किताब मैं कभी लिख नहीं पाऊंगा, बट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव रिटन जो मुझे पता है मैं कभी पूरी कर नहीं पाऊंगा. और ऐसी कई इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर जो हमको लगता है कि हम इच्छा है, बट मुझे पता है मेरे लाइफ टाइम में पूरी नहीं होगी. सो ये वाली इच्छा थी, एंड मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ 2 साल में कि मैंने अपने आप को कोपेनहेगन में पाया. मैं उनके सामने कॉफ़ी पी रहा था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट डेथ, and that is the book is all about. So everything is very honest, very something that मुझे नहीं पता था ये बुक फॉर्म ले पाएगी कभी. तो मैं इसका फर्स्ट हाफ पूरा लिख चुका था. अच्छा. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बड़ा उसके, मतलब आई डोंट बिलीव इन मिरेकल, आई एम ए सुपर एथीस्ट एंड ऑल दैट, बट मुझे कई बार एक ऐसा अच्छा लगता है कि आप एक एक कॉइन फेंकते हैं और वो हेड और टेल में करेक्ट आता है. सो मुझे वो टॉस बहुत अच्छा लगता है लाइफ में, तो आई एक्चुअली डू दैट अ लॉट. तो ये वैसा कुछ कॉइन था जो पता नहीं कैसे मेरे फेवर में गिरा. फेवर में गिरा, क्या कमाल फेवर में गिरा सर. आपने इसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस यूज किए हैं. मतलब ये बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, इस पे सारे लिख रहे हैं, अभी तक हम तक पहुंचा नहीं था. बट इंडिया में ये आई थिंक, मतलब क्योंकि मैं आपको इतना फॉलो करता हूं तो शायद मुझे ये पहली किताब मिली इन इंडिया जो मैं इतने सीरियस टॉपिक पे, क्योंकि नॉर्मली लोग किताब एंटरटेनमेंट और बट ऐसा एक्सपेरिमेंट इंडिया ने बाहर में भी कहीं नहीं हुआ है. नहीं हुआ है. किसी ने अभी आज तक ऐसा नहीं किया है कि एक किसी लेखक का सपना देखा जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जिसने एक्चुअली किताब लिखी है, एंड आपने जाके उस कंट्री में उस लेखक के और उस किताब के बारे में पूरी एक किताब लिखी हो, विच नेवर हैपेंड. सो आई लाइक दैट दिस इज द
फर्स्ट टाइम एवर, विच इज़ वेरी आई एम श्योर इंटरेस्टिंग। एंड इट इज सो अमेजिंग। ये कवर पे भी वही है। ये कवर में नाया ही है और मैंने हाँ। उनका फोटो खींचा था और उसमें ये जिक्र भी है कि मैंने जब उनसे कहा था कि मैं यही फोटो को कवर पे यूज करूंगा। कवर पे यूज करूंगा। इसमें जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपने रेफरेंसेस बहुत यूज किए हैं इसके अंदर, एंड जो वो कविता लिखी है शुरुआत में, वो उन्होंने ही आपके लिए लिखी है। हाँ, उन्होंने लिखी है उन्होंने मेरे लिए। एक बार ही आप हमारे लिए पढ़ना चाहेंगे क्या पढ़ा प्लीज? मेरे को उसके लिए चश्मा चाहिए होगा। सर आपका चश्मा दे दो। अगर मुझे दिख जाएगा। हाँ रीडिंग है ना। हाँ ला। अच्छा, तो मैं उन्होंने ऑफ कोर्स इंग्लिश में लिखी है, जी। मैंने उसका हिंदी में तर्जुमा किया है, तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। तो एम मीन्स माँ। एक अजनबी मेरे शहर मुझसे मिलने आया। वो मेरी गलियों में टहलना चाहता था। वो मेरी कहानी मुझसे सुनना चाहता था। एक किताब जो हमेशा उसके साथ रहती थी, एक किताब जो 7 समुंदर पार तितली के पंखों पर सवार होकर उस तक पहुंच गई थी। एक किताब जिसे मैंने लिखा था, उसे पढ़कर 7 समुंदर पार वो मुझसे मिलने आया। मैंने उसे अपना मुकद्दर दिखाया और उसने मुझे अपना। हमने कहा सारा कुछ शब्दों में ही है, शब्दों के विन्यास में ही हम मिले थे। सब कुछ हमारे कहे में रहा, सब जगह हमारे गए में शामिल रहीं। घर जैसी कहानियाँ, इन्हीं कहानियों की दुनिया में हम रहना चाहते थे। हम कहाँ से आए थे और कैसे रहते थे, कहानियाँ इन बातों से परे थी। और फिर हम साथ चले, धूप और बरसात में, अंधेरे और रोशनी में। हम साथ चख रहे थे सारे दुखों को, सारी हंसी को, और हम ये जान ना पाए कब हम कृतज्ञता से भर गए। जब वो चला गया तब वो अजनबी नहीं रह गया था, वो एक सुंदर दोस्त बन गया था। हम कहानी हो गए थे, इंसानी रिश्तों की एक चमत्कारी कहानी। नाया मारी एडिट, कोपेनहेगन, 2 जनवरी 2023। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मतलब जो कैमरा पे ना, अगर आप ऐसा रिप्ले करके देखो, मेरे चेहरे पे जो पूरा टाइम ऐसा 440 वोल्ट का बल्ब जलता रहा ना। मैं आपका, जब आप हिंदी कविताएं चैनल पे आप कविताएं रिकॉर्ड करते थे और वो वीडियो जाती थी, मैं वो लूप पे मैं, बिकॉज एज आई सेड, जब से मुझे पता लगा कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी कि वो प्लेराइट ने फ्री कर दिया प्ले, तो तब से मैं आपके रैबिट होल में ही वो हो गया था। बट मुझे ऐसा लगता है बहुत ही, अगर मैं बिल्कुल ही नॉर्मली बात करूं, हम सब ने जो थिएटर किया है, मैंने भी बिल्कुल ही मतलब रायते का रोडों पे ऐसे ही थिएटर किया। मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं हूँ, मैंने फॉर्मल कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। हमने कौन सा ऐसी कहानी या प्ले राइट या किसी को उधार था जिसकी हमने कभी परमिशन ली थी? हम तो सीधा प्ले उठाते थे, करते थे, क्योंकि हमारे पास हमारे खाने के लिए पैसे नहीं थे। हम प्ले राइट को देंगे सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा इंडिया बदला है? और मैं किस हक से किसी से पैसा मांग सकता हूँ? मेरा हक नहीं है। ट्रू। एक बात। इसकी दूसरी, बिकॉज इट्स कॉपी लेफ्ट एंड आई स्टार्टेड दिस, तो मैं इसलिए ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स मैंने कई राइटर्स को नाराज किया है, कई राइटर्स मुझसे नाराज थे, लेकिन उसका एक बहुत दूसरा बड़ा रीजन है कि मुझे लगता ही नहीं है पुराने प्ले मैंने लिखे। मैं अपनी पुरानी किताब पढ़ता हूँ, मुझे लगता ही नहीं कभी मैंने लिखी है, बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट पर्सन लिविंग एट दैट टाइम। और उसने जो लिखा है, वो जो देखा, वो जो सुना, उस समय जिन लोगों के साथ था वो, उस समय जो, जैसे मैं कोपेनहेगन में था, मैंने ये लिख दिया, उसमें कोपेनहेगन का भी उतना ही हाथ है जितना मेरा लिखने का हाथ है। मैं कैसे अचानक खुद पैसा ले सकता हूँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन सुनो दोस्त, ये सब आपका दिया है, मैंने बस, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, आई कैन ओनली रिएक्ट, सो इट वाज माय रिएक्शन, एंड माय रिएक्शन में सब लोग इन्वॉल्व थे। तो ऐसे मेरा अरण्य जो थिएटर ग्रुप है, मेरे लिखे प्ले में वो सब इन्वॉल्व है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनको बोलूं तुम चाय पियो, मैं पैसा रखता हूँ? तो सर, जो डूबा सो पार का टिकट नहीं मिल रहा है सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे को। वो आपको तुरंत बुक करना पड़ेगा। वो तुरंत बुक, मैं जब बुक माय शो खोलता हूँ, मैं कहीं लिखता है, फटाफट क्लिक करता हूँ, सोल्ड आउट, उसका टिकट नहीं मिल रहा है सर। और ऑल्सो आप इल्हाम कभी प्ले करोगे दोबारा? अभी हमने किया था इल्हाम का शो, इल्हाम पार्क दिल्ली में था। मैं इतना सैड था ना मैं उस टाइम पे कि मैं मुंबई में नहीं हूँ यार। हाँ, मतलब हम सब, मतलब एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ शोज, क्योंकि काफ़ी लोग देखना चाहते हैं इल्हाम, मतलब पार्क,
सारे पुराने नाटक जो भी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया पुराने हाँ। नाटकों का वापस करना, बिकॉज सारे अभिनेता बिजी होते हैं, फिर देन यू हैव टू कंडक्ट रिहर्सल्स, देन यू हैव टू कंडक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम प्लानिंग टू डायरेक्ट सम 2 न्यू प्लेस, तो उसकी रिहर्सल और उसका रिसर्च वर्क चालू है। क्या बात, कमाल है सर। सर एक पॉइंट जो किताब में था, जहाँ पे मैं ऐसे मतलब किताब को ऐसे आंख में लेके बैठा था, एंड देन एकदम से आपने कट कर दिया वो स्टोरी को, एंड आई एम लाइक मेरे को जानना है क्या हुआ था इसके। सो इस किताब में आपने 3 स्टोरीज पैरेलली आप चला रहे हो। एक पॉइंट है जहाँ पे शायर और राइटर के बीच में इतना टेंशन चल रहा है, एंड देन आप वहाँ पे कहते हो और मैंने सोचा मैं इस रात के बारे में नहीं लिखूंगा। लाइक क्यों नहीं लिख रहा? एंड देन अगेन आपने 10 पेजेस बाद वो टेंशन बिल्ड किया, एंड देन अगेन लिखा कि हाँ मैंने सोचा मैं इस रात के बारे में भी नहीं लिखूंगा। एक तो वहाँ मेरा हो गया था। ये बताओगे क्या थोड़ा सा? मुझे खैर ऐसा लगता है कि जैसे कई जगह आप एक थ्रेड जब छोड़ देते हो एंड यू आर इन इट, यू है मतलब आपका पूरा इन्वेस्टेड हो आप उसमें, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाला है वो कुछ चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पूरा करता है देन मैं लिखने वाला। तो तुमने उस रात को अगर अपने दिमाग में कभी पूरा किया होगा, वो ज़्यादा अच्छे से पूरा किया होगा देन मैं उसको लिख के छोटा कर देता शायद। यही चीज़ मुझे शायर के कैरेक्टर के लिए भी लगी थी। आई एम लाइक मैं इतने चेहरे आए मेरे दिमाग में शायर के कैरेक्टर को लेके, जितने, क्योंकि कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने से ज़्यादा आपने जितना प्यार से सराउंडिंग्स और उन सिचुएशंस को इमेजिन किया है, मेरी लाइफ में जितने लोगों को मैं शायर से इक्वेट कर सकता था, सबके चेहरे मेरे माइंड में आ रहे कि यहाँ ये फिट बैठ रही है, नहीं इस सिचुएशन में नहीं बैठ रही, यहाँ पे शायद ये। एंड अगेन दैट वन पॉइंट जहाँ पे आप वापस से उस किताब का नाया की किताब के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड देन शायर सेज कि अच्छा वो वहाँ पढ़ना बंद कर देती हैं। वो भी मेरा ऐसे हो गया था कि यार यहाँ क्यों, बिकॉज जब वो एन कॉल्स द पुलिस कि मुझे डर लग रहा है कि वो कूद ना जाए या मुझे ना मार दे, एंड वहाँ पे बस यहाँ पढ़ना बंद कर दे रहा है यार। एंड देन पता है जेन्युइनली आई फ्लिप पेजेस की कहीं कंटिन्यू किया है क्या, मैं पहले वो पढ़ लेता हूँ, बट आई वाज लाइक नहीं, ये कॉम्प्लेक्सिटी आपने मतलब इसके लिए स्पेशली अडेप्ट करी है या रिसेंटली आप जो पढ़ रहे हो उसके थ्रू या आपकी राइटिंग स्टाइल में आई है? अब असल में मैं हमेशा ही वो लिख रहा होता हूँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो मैं मिस करता हूँ पढ़ाई में अपनी, या ना मैंने वही प्ले डायरेक्ट किए हैं जिनको ऑडियंस में बैठ के मैं देखना चाहता हूँ। सो इट्स अ क्रेविंग ऑफ अ गुड रीडर और गुड ऑडियंस जो सब क्रिएट कराती है। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो कहानी की तरह ना चले। अच्छा। कहानी में बिगिनिंग मिडिल एंड ना हो। कहानी में वो सारी चीज़ें ना हो कि मुझे पता है कि अच्छा ये हुआ यहाँ जाएगी, नहीं जाएगी कहीं। कई बात कहानी किसी और जगह जाएगी, कोई नया पात्र आएगा, कुछ और बातें होगी। तो इट्स मोर लाइफ लाइक रादर देन मोर लीनियर। ऑल्सो अगर वो बहुत लाइफ लाइक है ना, तो यू आर पार्ट ऑफ इट एज अ रीडर ऑल्सो। तो मैं नहीं चाहता कि रीडर दूर से पढ़े उसको लगे कि हाँ ये तो इनकी कहानी है, मेरा इससे क्या लेने देना। मतलब अगर मैं डेथ के बारे में बात कर रहा हूँ तो रीडर को अपनी डेथ दिखनी चाहिए, अपने आसपास की डेथ दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखेगी, आई एम नॉट राइटिंग वेल। सो आइडिया है कि वो उतना ही इन्वेस्ट हो इस कहानी में जितना मैं इन्वेस्टेड हूँ। एंड बिकॉज मुझे ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट लाइन क्या है, तो मैं ना बहुत फेयर खेलता हूँ अपने रीडर के साथ, क्योंकि मुझे कभी नहीं पता होता कि मैंने 2-3 लाइन लिखी, चौथी लाइन क्या होगी। तो वो उसी समय मेरे पास आती है और मैं खुद भी डिस्कवर करता हूँ कि जा कहाँ रही है बात, ये इधर क्यों जा रही है, ये शायर मुझे क्यों कह रही है कि मत लिखो मेरे बारे में, और मेरे क्यों हाथ रोक रहे हैं। तो ये जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है, तो वी आर ऑन द सेम पेज, और हम लोग बहुत फेयर हैं, ऑनेस्ट हैं। तो इसलिए मुझे लगता है मुझे लिखने में जितना मजा आ रहा होता है, रीडर को भी पढ़ने में उतना ही मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों, मेरे को ज्यादा मजा आया, ऐसा नहीं है। हम दोनों को सेम पता है बातें, और सेम बातें नहीं पता। मैं कॉलेज में एक बार ना वो पढ़ रहा था, बहुत दूर कितना दूर होता है, ठीक है। एंड सो मैं जान के थोड़ा ना अलग बैठता था कि मुझे कोई किताब पढ़ते हुए डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे ये बुक पढ़नी है। एंड मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ, और
आसपास दोस्त जा रहे हैं, they're like, यार स्नेल कुछ हो गया क्या, तू अकेले क्यों बैठा है रिसेस टाइम? I'm like, नहीं मैं अकेले नहीं बैठा हूँ, मुझे इसके साथ बैठने दो थोड़ी देर. एंड वन वेरी फनी इंसिडेंट हैपेंड एट होम. मैं जब ये किताब पढ़ रहा था, बहुत दूर कितना दूर होता है, शेल्फ पे पड़ी थी. एंड मेरी छोटी बहन उस टाइम 4-5 साल की थी, नया नया पढ़ना ही सीखी थी बस. एंड मैंने उसको बोला, तानिशी शेल्फ से बुक लिया. कहती क्या नाम है? मैंने कहा बहुत दूर कितना दूर होता है. एंड देन शी लाइक, ये क्या नाम है बहुत दूर कितना दूर होता है? होता है दूर होता है, बहुत दूर तो दूर ही होता है. एंड आई एम लाइक, अरे ये जैसे ट्रैवलॉग होता है ना, वैसा वैसा सा कुछ. बट एक तो वन वेरी हाई मोमेंट इन द नॉवल वाज व्हेन शायर आपको मेल करती है बाद में, एकदम 117वें पन्ने पे जब आपको मेल आता है. मैं इतना मिस कर रहा था. पर उसी पेज पे मेरा ध्यान, वहाँ से तो मैं बहुत खुश हुआ, पर उसी के जस्ट पास में ही एक पेज पे ये बात भी है कि किसी ने आपको मैसेज भेजा कि आप नाया की लाइफ को ऐसे ना कुरे दें वापस से उनको. ऐसे ये मुझे पढ़ते हुए एक सेकंड को एक ऐसे हो गया कि यार पॉइंट तो है थोड़ा सा. जब आपने भी इसमें लिखा कि कैसे यू ऑल्सो वर टेकन अबैक एंड यू ऑल्सो वेंट इनटू कि यू नो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट लिविंग दैट थिंग कि जब आपके सामने एक्चुअली वो मोमेंट में वो मैसेज आया, तो कितने थॉट्स एक साथ आपके माइंड में आया? एंड यू वर लाइक, वर यू क्वेश्चनिंग योर डिसीजंस कि मुझे शायद करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? मतलब एक एक्चुअली पूरा प्ले इस पे लिखा गया है, मतलब इंटरनेशनल प्ले है अबाउट, इट्स कॉल्ड आर्ट. और ऐसे कई लोगों ने इस बारे में लिखा है, बिकॉज कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे वो पेंटर हो, फोटोग्राफर हो, फिल्म मेकर हो, राइटर हो, एक हमेशा एक जद्दोजहद लगी रहती है कि जो मेरे उसमें है वो मैं लिखता भी हूँ उसको, कि मैं जीता कितना हूँ और लिखना कितना बटोरता हूँ. अच्छा. और ये जद्दोजहद बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एक रिलेशनशिप में मैं था, मैं बोल भी चुका हूँ, मैं एक रिलेशनशिप में था, लंबी रिलेशनशिप चली आ रही थी जैसे कि होती है, सुंदर सी सब कुछ. एंड अचानक रिलेशनशिप में लड़की ने मुझसे कहा कि यू नो आई वांट अ ब्रेक. और मुझे पता है कि हम दोनों प्यार में थे, मैं रोक सकता था, मैं उसको बोल सकता था अरे व्हाट इज दिस, एंड ऐसा, और या फिर एक चल लेट्स गो आउट, लेट्स ट्रैवल टुगेदर एंड ऑल. बट आई लव दैट आइडिया. Let's take a break. There is a drama. There is a turn. And I thought, what an interesting story this is. And I want to read that story. अब क्या हुआ कि मैं वो कहानी पढ़ना चाहता था जो अभी घटी. तो मैंने कहा हाँ आई थिंक यू शुड, मत देखो. और सब आई वाज जस्ट प्लेइंग कि मैं बस पढ़ूं. लिखे वो, उसने लिखा और वो हम अलग हो चुके थे कुछ महीने बाद. एंड मैंने कहा डैम, बट द आइडिया इज आई वाज पिकिंग द स्टोरी and not living it. फिर वो कहीं लिखी आपने किसी के? नहीं, बट आइडिया है कि दैट्स अ बोरिंग स्टोरी. मतलब मेरी लाइफ की पर्सनल स्टोरी बोरिंग है, इसलिए मैं अपनी लाइफ नहीं लिखता हूँ. फिक्शन, दैट्स व्हाई आई लाइक फिक्शन. बट द आइडिया इज, हम ये तो बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सी हज़ारों छोटी चीज़ होती हैं, यू पिक बट यू डोंट लिव. तो जैसे अगर मैं कोपेनहेगन हूँ, मैं तो बार बार क्वेश्चन करता हूँ, मैं यहाँ कितना यात्री हूँ जो यात्रा कर रहा है, और कितना लेखक हूँ जो यात्रा नहीं करने दे रहा है यात्री को, और हर चीज़ को बटोर रहा है. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मेरे से फाइट चलती रहती है, जो इसके शुरुआत में भी है कि अकेलापन और उसके बीच की जो फाइट है कि मैं उसको रिप्लाई करूं कि मैं ना करूं. या तो वो आर्टिस्टिक फाइट है. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो रीडर है वो उसका पूरी तरह हिस्सा रहे, क्योंकि एक दिमाग में आप आर्टिस्टिक चॉइसेस हैं, यू टेक एंड यू आर यू टेक इट दैट टर्न, और फिर लाइफ कहीं और चली जाएगी, कहानी कहीं और चली जाएगी, व्हिच आई रियली लाइक. तो नाया के केस में भी ये हुआ था कि जब ये हुआ तो मैं खुद उस वक्त जर्मनी चला गया था. अच्छा. मैंने नाया को बोला था आई नीड अ ब्रेक. मैं जर्मनी जा गया, और मैं जर्मनी में घूम रहा था और मैं यही सब सोच रहा था कि क्या करूं. बट देन प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने उस मैसेज को भी लिख दिया. फिर मैंने कहा ये तो मैं मेरे मतलब बिकॉज राइटिंग की ऑनेस्टी तो होनी चाहिए. सो इफ आई एम अ राइटर, आई कांट रिमूव दैट मैसेज फ्रॉम द बुक. बस वो एनोनिमस है, रादर देन मैंने किसी का नाम लिया. बट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि वो लिखूं. अब जब वो लिख दिया और जब मैं वापस आया, तो इनफैक्ट इसी में उसका आंसर है, जिसमें लास्ट में मैंने जब वो हॉस्पिटल का एक इंसिडेंट है जिसमें मैं उनके साथ था, एंड आई थॉट इट वाज वे टू पर्सनल एंड आई शुडंट राइट दिस. मैंने उनको बोला था शायद मैं नहीं लिखूंगा, एंड शी सेड यू हैव टू राइट इट बिकॉज आई हैव रिटन द एंटायर बुक. एंड मुझे भी ये पता है कि जब उन्होंने पूरी किताब लिखी थी, उनका परिवार के कोई भी आदमी उनसे खुश नहीं था, बिकॉज इट वॉज वे टू पर्सनल, एंड एवरीवन यूज्ड टू लव काल. तो काल के प्यार में इतने सारे लोग थे कि सबको लगा कि यार मतलब मैं वहाँ कब्र पे
काल के सामने कैसा खड़ा था, हाँ, तुमने वो भी लिख दिया, यू नो. सो एवरीवन वाज फीलिंग वेरी वायलेटेड एंड आई फेल्ट कि उसके बाद भी उनमें इतना करेज है. बिकॉज सी द थिंग इज, अगर तू बांसुरी बजाता है ना, एंड इफ समथिंग हैपेंस यू वांट टू सिट विथ योर बांसुरी एंड दैट्स दैट इज ओनली थिंग दैट गोइंग टू गिव यू काम. एक राइटर क्या करेगा? राइटर इज गोइंग टू राइट, अदरवाइज नहीं होगा. बहुत मुश्किल है लाइफ, यू नो. और खासकर यंग किसी घर में डेथ, उससे ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी आप देख नहीं सकते. मैंने लोगों को खत्म होते देखा है. मैंने लोगों को विद इन 3 months बूढ़ा होते देखा है. मतलब फादर को, मदर को जो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, विद इन 3 months यू सेड कि व्हाट हैपेंड. मतलब बहुत मुश्किल है उसको डील करना. एंड तो इसलिए इसको इतना सेंसिटिव रखना, इसको इतना रिस्पेक्टफुल रखना बहुत ज़रूरी था. एट द सेम टाइम बिकॉज I was passionately talking about death and I was having a lot of fun writing it. मैं चाहता था कि वो जो फन और वो जो पैशन है वो कोई भी पढ़ने वाले को तक पहुंचे, चाहे कुछ हो जाए. मुझ तक तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए भी पहुंचा बिकॉज रिसेंटली, अगेन थोड़ा सीरियस कॉन्वर्जेशन का टर्न हो जाएगा, बिकॉज रिसेंटली आई एक्सपीरियंस्ड लॉस घर में, अ यंग लॉस, एन ओल्ड लॉस. ये सब अभी एक्सपीरियंस किया. तो व्हेन आई रेड दिस, that is why I think I cried when I was reading it, because जब आपने एंड में हॉस्पिटल का जिक्र करते हो आप, तो मेरे माइंड में वो हॉस्पिटल आ रहा था जो हॉस्पिटल मैंने जिया है. हाँ. जो मेरे घर के पास करोल बाग में जो हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमारे साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए वो हुए, तो मेरे माइंड में वो हॉस्पिटल आ रहा था. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक कि दिस बुक हैज़ सम पावर, कि मैं वहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा हूँ जहाँ पे जो शायद मैंने साल पहले जिया था, और कहीं कोने में दबा हुआ है वो, पर ये चीज़ें कभी ख़त्म तो होती नहीं है हमारे माइंड से, हमारे हार्ट से. तो वो सब था. बट अगेन एज आई सेड, दिस इज़ अ वंडरफुल रीड, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस बुक इनटू दिस वर्ल्ड. आई थिंक ये 2 बार तो मैं पढ़ चुका हूँ. एंड जब भी आई थिंक रिसेंटली दूसरी बार, वेरी फ्रैंकली आई विल नॉट लाई, ये मैंने जब आपने हाँ बोला कि आप आओगे, तो मैंने कहा मुझे इसको दोबारा पढ़ना है. मुझे दोबारा पढ़ना है. एंड देन मैंने ना पेंसिल से जैसे लिखा हुआ है पेज 22, 31, 32, यहाँ पे पता है एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा वियर्ड एक आइडिया है कि क्यों हमें किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है. मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको किताब, एक बहुत बड़ा मतलब फिलोसफिकल और ये है कि लोग कहते हैं कि आपको अपने जीवन की करेक्ट किताब मिली नहीं है, इसलिए आप नहीं पढ़ते हो. जिस दिन वो मिल गई. बट मुझे लगता है हमारे इंडिया में ये दूसरा किस्म है. वो मैंने डिस्कवर किया है कि हमें हमेशा लगता है कि अगर हम कोई भी किताब पढ़ेंगे, तो कोई भी राह चलता आदमी या कोई भी आदमी ना हमसे उस बारे में सवाल पूछ लेगा. तो हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं. हम उसको हमेशा पढ़ते हैं कि अगर किसी ने सवाल पूछा तो मैं ये जवाब दे दूंगा. तो हमारी जो स्कूलिंग इतनी खराब और रिग्रेस और इतनी बेकार हुई है कि हमने कभी कोई चीज एंजॉय नहीं किया पढ़ते समय. हमने सिर्फ पढ़ा है कि एक दिन वो जो सामने आदमी खड़ा है, जो मेरे सपने में भी मुझे आके डराता है, वो अगर एक सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दे पाऊं. मतलब मैं क्लास के सामने बेवकूफ ना बनूं. और इसने हमारे डीएनए पे असर किया है. और अब क्या होता है ना कि जब किताबें, जो कि मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, किताब है ही नहीं. पहली बात तो उससे मुंह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अच्छा. वो आपका वो वाला दोस्त है जो, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे आप हम सब चाहते हैं ना कि हमारा इंटेलिजेंट दोस्त हो. हमारा ऐसा दोस्त हो जिससे बात करने में मजा आ जाए. बिल्कुल. आप चुन के तो एक मूर्ख बोरिंग आदमी नहीं चुनते हो ना. 100%. यस. तो मैं कहता हूँ किताब अगर आपका बहुत इंटेलिजेंट दोस्त है, एक बड़ा जिस सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहते हो वही पे बात प्रेस करते हो, कर रहा है, तो वो बस आपसे बात कर रहा है और उसके बाद तुरंत उसको बोल दो भाई तो अब निकल मेरे घर से, हो गई बात खत्म. उसको ऐसे ट्रीट करो एज ए फ्रेंड. यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट, एंड यू विल हैव सो मेनी फ्रेंड्स. मतलब जिस तरीके का मूड है उस तरीके के फ्रेंड है आपके पास. सो यू हैव अ वेरी रिच लाइफ. एक्चुअली अगर वो तुम्हारे मास्टर जी को निकाल दो अपने दिमाग से, तो सारा कुछ करेक्ट है. तो मुझे लगता है ये सब हमारा जो है ना सेकंड टाइम आपका जो पढ़ना था, तो यार मैं वैसा नहीं हूँ, मैं नहीं कोई सवाल पूछूंगा. मैं एक बार आई थिंक इट वाज ठीक तुम्हारे पीछे आपकी किताब थी. मैं चुहल देखने आया था, एंड पीछे ना मुझे आप दिख गए, ठीक है. एंड आई वाज विद अ फ्रेंड एंड आई वाज लाइक, कनिका सुन, तू किताब पे साइन ले आएगी क्या?
कहती तू चल ना, तू साथ चल। आई वाज लाइक नहीं सर के आगे मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं मैं सर के आगे नहीं जा रहा। देन शी वेंट एंड वो आपसे साइन लेकर आई एंड आपने उससे पूछा कि किस नाम से साइन करना है, और उसने गलती से अपना नाम बोल दिया कनिका। वो वापस आई, I'm like, ये क्या है, कहती sorry। बट देन उसके बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। उस मैं आई थिंक चोहल सबसे वो प्लेयर जो मैंने सबसे ज़्यादा बार देखा पृथ्वी पे। अच्छा। उसके बाद भी मैं अपनी एक और फ्रेंड के साथ आया था एंड देन उसको भी मैंने सेम चीज़ बोली, लाइक जाना सर से प्लीज़ साइन ले आना। और वो भी ठीक तुम्हारे पीछे। उस टाइम मैं वो लेके गया था हार्ड कवर वाली, एंड शी इज लाइक नहीं तू भी चलेगा साथ में, तेरे को अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। एंड देन फिर वो मुझे और आपको मतलब खुद और मैं, अब देख रहे हो कितना फंबल कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, मैं और वो थैंक्स थैंक यू। वो और मैं फिर आपसे वो साइन लेने आए थे। मेरे एक शेल्फ में पूरा वो एक आपका और एक पीयूष मिश्रा सर का, 2 शेल्फ ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे सारी उनकी किताबें और एक शेल्फ में सारी आपकी किताबें हैं। एक उसी दौरान मैंने आपसे एक बात पूछी थी, जो उस टाइम आपने मेरे को जो जवाब दिया था वो मुझे समझ नहीं आया था जो आपने, बट द थिंग इज मैं पहली बार आपको देख रहा था, मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ करूँगा तो मैं कितना स्टूपिड साउंड करूँगा यहाँ पे। तो बट मैंने आपसे पूछा था कि आपकी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपकी उन कहानियों में या जिनमें आप एक्ट करते हो या जो आप कहानियाँ लिखते हो प्लेज, कहीं ना कहीं लॉस का फैक्टर कैसे जैसे अब म्यूज़िक टीचर में जो फिल्म है उसमें करियर का लॉस है, द अल्टीमेट लॉस ऑफ डेथ, लॉस ऑफ लाइफ। चोहल में लव का लॉस हो जाता है टुवर्ड्स द एंड, द फेम गेम इज लॉस, अजीब दास्तान अगेन लॉस। कैसे या जो मैंने एक्टिंग की है उसमें तो मेरा बस नहीं है क्योंकि वो लिखी गई है और किया, लेकिन जो मैंने लिखा है चोहल तो बिल्कुल ही लॉस का प्ले नहीं है। हाँ, इट इज अबाउट आरती एंड इट इज अबाउट द वे ऑफ लिविंग, अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग जो कोई भी पुरुष कभी समझ नहीं सकता अगर उसको एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन मिले तो। 100%। तो ये एक वो है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा से ही हारे हुए लोगों की कहानियाँ, हारा हुआ जीवन बहुत एक्साइटिंग लगता है, बहुत ड्रामेटिक है, बहुत सुंदर है। तो जीता हुआ जीवन बोरिंग है, इतना इससे बोरिंग मुझे कहानियाँ नहीं लगती कि वो जीत गया अंत में। मैं मतलब उसका कुछ भी नहीं है, इट डजंट गिव मी एनीथिंग एंड आई एम बोर्ड टिल डेथ ऑफ ऑल द सक्सेस बुक्स, हाउ टू बी सक्सेसफुल, सेल्फ हेल्प बुक, वो गार्बेज मेरे को बहुत खराब लगता है। तो मेरे लिए ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आई प्ले अराउंड, आई गो एंड आई हैव फन विद ऑल दीज थिंग्स। एंड आई थिंक हार में ही एक बात है कि जो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसकी इतनी गलियां हैं, इतने दरवाजे हैं, आप किधर भी खोल के कहीं भी जा सकते हो। एक अपने हारे हुए दोस्त से बात करो, आपको मजा आ जाता है अगर एक्चुअली 1-to-1 उससे बात करो। मतलब जीता हुआ दोस्त तो सेल्फी लेके चला जाएगा या कहेगा तू तो सेल्फी लेने आया हुआ या व्हाटएवर, आई एम जस्ट पुटिंग इट अ वेरी बेसिक पर्सपेक्टिव। बट मुझे लगता है हारा हुआ की कहानी बहुत प्यारी होती है। तो इसलिए हार इज नॉट हार इन लव और हार इज नॉट हार अपने से भी हार होती है। आप कई चीजें अपनी लाइफ में गिव अप करते हो, एवरी गिव अप थिंग इज अ लाइफ इन इटसेल्फ, यू नो, आप उसके बारे में लिख सकते हो, बट वो भी एक छोटी हार है। तो हम तो वो हार और उससे तो जूझते ही रहते हैं। आपसे जब मैंने पूछा था तो आपने यही कहा था कि कहानी में भी मुनाफा ढूंढ लिया दोस्त तो फिर वो क्या ही कहानी हुई। ठीक है बट मतलब ऐसा होता है ना कि हम हमारे वो एक्चुअली बात ये थी कि हम हर चीज में, हमारी एक आदत भी है ना कि इसमें फायदा क्या होगा, मैं ये जो किताब पढ़ूंगा उसका फायदा क्या है। तो मेरे को हमें लगता है हर चीज में मुनाफा और वो नहीं छोड़ देना चाहिए। बट जैसा आपने चोहल के बारे में बात की, इट्स अ ब्यूटिफुल प्ले अबाउट एन एम्पावर्ड वुमन एंड द रीजन व्हाई आई हैव went to like I've gone to watch that play multiple times is because कि मुझे वो हर बार प्ले कोई ना कोई एक नई चीज़ देकर जाता है। अभी रिसेंटली जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपने कहा कि आपने कुछ सालों से सिर्फ विमेन राइटर्स ही पढ़े हैं। अब वही मतलब वो दिशा आपने मतलब why did you choose to go that way कि अब से मैं ये ही कुछ राइटर्स पढ़ूंगा, या वही कुछ ऐसा खास आपको दिखा ऐसे राइटिंग्स में जो आपने कहा कि ये ही है जो मुझे पढ़ना है? तो आइडिया है कि मैं मोस्टली जो भी बात कर रहा होता हूँ ना, तो वो हमेशा वो एक रिट्रोस्पेक्ट में बात होती है कि रादर देन
मैंने ऐसा किया कॉन्शियस, मैंने कभी कुछ लाइफ में कॉन्शियसली नहीं किया, मैं बस जी रहा होता हूँ और फिर बाद में पता लगता है ओह ऐसा हुआ था ना, बिकॉज लास्ट जो मेरी 35 कुछ पोस्ट्स हैं जो मैंने बुक्स की पोस्ट में एक इंस्टाग्राम चैनल है इस पर मैं करता हूँ, वो मैंने जब देखा तो वो पूरी की पूरी 35 पोस्ट सिर्फ वुमेन राइटर्स की है। तो मेरे को समझ में आया कि शायद मैंने पहली 3-4 वुमेन राइटर्स इतना एंजॉय किया कि आई स्टार्टेड ओनली रीडिंग वुमेन राइटर्स। एंड कॉन्शियसली क्या होता है ना कि आपको सजेशन में भी वही मिलने लगती हैं, आपको आने भी लगता है एंड दिखने भी वही लगता है, फिर वो वुमेन राइटर 4 वुमेन राइटर सजेस्ट करती है व्हाइल आई एम रीडिंग द बुक, सो आई जस्ट गो टू दैट। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि देखो जो सप्रेस्ड है उसकी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, उसमें हारा हुआ और जीता हुआ का खेल नहीं है, खेल है एक जो सप्रेस करता है और एक जो सप्रेस्ड होता है। हम पुरुषों ने तो सोसाइटी और पूरा फॉर्म ही ऐसा बनाया है ना कि हमने सालों से सप्रेस करके रखा है, हमने दोंच के कुचल के रखा हुआ है औरतों को, सब लोगों ने। अब उसमें क्या है कि जब कोई एक फ्री कंट्री है जिसमें काइंड ऑफ इक्वल चीज़ें आ गई हैं एंड एवरीवन हैज देयर ओन एजुकेशन एंड राइट टू स्पीक एंड एवरीथिंग, वहाँ की जो खासकर राइटर्स हैं जब वो अपने पूरे फ्रीडम पे किताबें लिखती हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कोई भी एक पुरुष राइटर पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ना ईयर्स एंड जनरेशंस की इसका सप्रेशन है, वो बहुत इनबिल्ड है, वो बहुत अंदर तक है। तो उनका जो बात कहने का तरीका ना एक सिंगल लाइन के भी अर्थ कई निकलते हैं। तो मैं ना सडनली इतना एंजॉय करने लगा हूँ उनकी राइटिंग पढ़ना, और इतना मैं अप्रिशिएट करने लगा हूँ कि आई थिंक दे आर राइट नाउ माई बेस्ट टीचर्स। ऐसा ये बहुत कमाल की बात है जो आपने कही है कि इसके अंदर लाइक इफ आवर ऑडियंसेस इफ दे वांट टू रीड एनी ऑफ दोज बुक्स, तो जो आपका इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे आप ये सब डॉक्यूमेंट करते रहते हो वो एक बारी बता दो। आई नो आपके 2 इंस्टाग्राम चैनल्स हैं जो और आप दोनों में से किसी भी अकाउंट से किसी को भी फॉलो नहीं करते बट आप मतलब जैसे आप अगर ऑडियंस को बताना चाहो कि ये 3-4 किताबें हैं, ये 3-4 फिल्म्स हैं जहाँ से आप एम्पावर्ड वुमेन जो उन्होंने लिखी हैं या वो यार मुझे हमेशा लगता है, देखो खुद के मरने से ना स्वर्ग मिलता है, मैं मरूंगा आपको स्वर्ग मिलेगा ऐसा कतई नहीं है। सही बात। गुरु पढ़ना है ना तुम्हें, पूरा वर्ल्ड है, ये फ़ोन पे सिर्फ तुम्हारे और कई चीज़ें आप मतलब सर्च करो सब मिल जाएगा। और इसलिए भी मैं किताबें डाल देता हूँ, दैट इज़ माई मानव को 19 ऐसा कुछ एक चैनल है, पेज है जिसमें मैं किताबें डालता रहता हूँ, राइटिंग्स डालता रहता हूँ। वो किताबें डालने का मतलब ये है कि बिकॉज मैं एक तरीके के राइटर पढ़ता हूँ और कई बार मुझे थ्रू इंस्टाग्राम कई नई किताबें मिलती हैं, तो मैं बैक एंड फोर्थ में मैं चाहता हूँ कि वो एक डिस्कशन बना रहे, एक संवाद बना रहे। और यूं भी किसी के भी हाथ में अगर किताब दिखती है तो मैं खुद जाके उन लोगों से बात करता हूँ। आई लव पीपल हु रीड, बिकॉज एक कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होती है, देयर इज़ सम एक कोई सब्जेक्ट है जिससे हम बात कर सकते हैं एटलीस्ट। तो मेरा बेसिक बहुत फंडा क्लियर है कि जो लोग बहुत पढ़ते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बात करने में, तो इसलिए वो चैनल उसी तरह से सिर्फ उसी के लिए है। बट अगेन अब थोड़ा सा किताबों से थोड़ा सा हट के सर की फिल्मोग्राफी की तरफ जाते हैं, बट उससे पहले एक फाइनल बारी आई विल टेल एवरीवन दैट दिस इज़ अ ग्रेट बुक, डू गो एंड इफ़ यू नॉट रेड इट येट अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और बहुत इजीली अवेलेबल है एक्चुअली, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, जाओ सर्च करो, ख़रीदो, मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी, सर को कमेंट्स में बताओ, सर को डीएम करो, सर इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है, just tell us how you like the book and yeah, that's pretty much about the book and the plays. But now I want to talk about Jajantram Mamantram जो कल्ट है वो पिक्चर, जो वो मूवी ने एक पूरा जनरेशन, मतलब जजंतरम ममंतरम यूज्ड टू बी माय फेवरेट फिल्म टू गिव व्हेन वी वर प्लेइंग डमशराज। आई नो किसी से नहीं होती थी जजंतरम ममंतरम वो वाली फिल्म। कैसे सर आपका भी वो डेब्यू था, हाउ डिड जजंतरम ममंतरम हैपन, ऑल्सो द VFX, हाउ लाइक आज के टाइम में तो हम VFX बोल देते हैं और वो भी खराब कर देते हैं, उस टाइम में उतना टेक्नोलॉजी था भी नहीं एंड स्टिल you guys pulled that off. How was Jajantram Mantram for you? यार असल में मैंने तो ऑडिशन दिया था जैसे कि सब लोग देते हैं। मैं बॉम्बे में एकदम नया आया था,
और आई रिमेंबर सौमित्र रानडे द डायरेक्टर, मैं उसके ऑफिस में गया, आई डिड द ऑडिशन एंड सडनली वी स्टार्टेड चैटिंग, वी स्टार्टेड स्मोकिंग एंड चाय वाय पी रहे थे और इतनी हमारी फनी बातें चालू हैं एंड सडनली वी बोथ हैड दिस थिएटर बैकग्राउंड एंड उनका मराठी थिएटर का पूरा बैकग्राउंड था, उनका भी सत्यदेव दुबे से कनेक्शन था, एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद सत्यदेव दुबे, तो इतना फनी कनेक्शन हुआ एंड हम लोग अचानक दोस्त हो गए। और उस दोस्त में हम लोग आगे बढ़ते गए। उस दोस्ती में बाद में मुझे पता लगा कि उसने बहुत कम पैसे दिए मुझे पैसे दिए ही नहीं बेसिकली, बट हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए। 10 साल बाद हमने एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है फिल्म भी की साथ में, अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो फिल्म में क्या हुआ, बिकॉज वो फिल्म करीब 2 साल में बनी, क्योंकि वो पूरा जो मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स था और सब कुछ था, वो पहली बार हो रहा था इतने बड़े स्केल पे। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये जो है, ये आदमी इधर खड़ा होगा तो समुद्र कितना छोटा दिखना चाहिए, उस समुद्र के छोटेपन में पेड़ कितने होने चाहिए और आदमी कितने, वो सारा डायग्राम में ना हम लोग तो आए थे, हमको लगा था भैया जैसा शूट, तो 1.5 साल को शूटिंग चली थी इसकी, 1.5 से 2 साल। और आई रिमेंबर वी यूज्ड टू गो टू पालघर अलॉट, बिकॉज पालघर में सारा बीच वाला सब सेट वेट लगा था, तो पालघर और फिल्म सिटी, पालघर फिल्म सिटी, यही सब चल रहा था। बट वहाँ सब लोग इतने ज़्यादा कड़क दोस्त हो गए थे हम लोग आपस में, और इतना फैमिली एक हो गई थी ना, तो मुझे लगता था कि बम्बई एक्चुअली प्लेस करूंगा और बीच बीच में जनंतरा मंदिर शूटिंग पूरी लाइफ भर करूंगा ऐसा मुझे लगा था कि यही है शायद बॉम्बे, कि ऐसा ही होता होगा कि एक फिल्म चलती है, कई बुढ़ापे तक चल रही है वही फिल्म। तो मेरे को बहुत मजा आया। सडनली कुछ समय बाद वो रिलीज हुई, रिलीज होते समय उसका कुछ भी बज़ नहीं था, वो आई और चली गई। फिर सडनली उसको डीवीडी आई और कुछ समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वो डीवीडी आई और डीवीडी ने जो मतलब उसको फैलाया है सब जगह, और वो इतनी बड़ी हिट हो गई। और फिर वो एक चैनल पे आती थी नॉन स्टॉप एवरी संडे, एंड तो सब लोग उसको देखते, तो बार बार लोग मुझसे पूछते थे। मैंने कहा मैं तो एक्टिंग छोड़ चुका था तब तक, मैंने कुछ 12-15 साल एक्टिंग छोड़ी थी, तब तक मैं बात भी नहीं करता था। मैंने कहा कोई होगा, मैंने कहा वो एक मेरा छोटा भाई था, ट्रैक से उसका एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं तो थोड़ा सा डार्क स्टोरी सुनाता था, सब लोग बोलते थे वो डैम, कहता मैं तो थिएटर करता हूँ यार बस। But how was it working with Javed Jafri? He himself is a cult. बट मैं मिला ही नहीं उससे। क्या बात कर रहे अरे हो? क्योंकि हम वो बड़ा मतलब ग्रीन स्क्रीन था ना, तो मैं अपना करता था, वो अपना करके जा चुका होता था, क्योंकि तो जावेद और हमारा ऐसा हेलो हाय का इंटरेक्शन था बीच में, ए व्हाट्सअप, एंड ही यूज्ड टू जस्ट कम गिव हिज लाइक टेक्स, एंड देन दिन भर फिर हम लोग, मैं और सौमित्र सब हाँ चल तू छोटा है, उसने ये किया। कोई एक असिस्टेंट था जो खराब आपको वो देता था और आप कर रहे तो जो आप वो ऐसा ऊपर देख के आदित्य चिल्लाते थे वो हवा में। पहली देखो फिल्म मिली गुरु, और आसमान में देख के एक्टिंग करनी है। मतलब टास्क देख रहे हो आप। तो मैंने पूरे समय आसमान में देख के एक्टिंग किया है। आदित्य एंड देयर वाज नो वन। बताओ, अरे मेरे तो आ गए क्वेश्चंस कराओ। बट ये एक नया रेवलेशन मिला है कि आपने आसमान को देख के एक्टिंग करी थी। बट फिर उसके बाद वापस से आप सिनेमा एक्टिंग में आपने वापस से कब स्टार्ट किया, एंड व्हाट शिफ्टेड जो आपने कहा कि चलो लेट्स गिव सिनेमा ट्राई अगेन? आई थिंक बिकॉज पहली बात तो मेरे को शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो मैं हट गया था। एंड मैं पता नहीं, मैं शुरू थोड़ा आइडियलिस्टिक हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती मैं करता ही नहीं। तो 2013 में मैंने काय पोछे से, आई से माय काय पोछे इज माय फर्स्ट फिल्म। अच्छा। तो वहाँ से मैंने वापस शुरू किया था, बिकॉज मैं उस समय तक थोड़ा बहुत थक गया था थिएटर से। और मैंने एक फिल्म डायरेक्ट कर ली थी, जो होता ना 12,000 रुपये लेके आप, हंसा एक नाम की फिल्म तथागत डायरेक्ट कर रहा था उस समय, और मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था। अच्छा। तो मेरे को अचानक एक आई पोछे आई और ऑडिशन मिला, मैंने कहा मैं कर लेता हूँ, बस पैसा दे देना। तो उन्होंने पैसा दिया और मैंने जाके काय पोछे शूट किया, एंड सडनली वाइल शूटिंग आई रियलाइज दैट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस, एंड आई कैन मतलब एक सेंस भी था कि इंडस्ट्री बहुत बदल गई थी, इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो गई थी, लोगों की अप्रोच टुवर्ड्स एक्टर्स, स्क्रिप्ट, साउंड डिजाइन, एवरीथिंग वाज चेंजिंग अ लॉट एट दैट टाइम। आई थिंक ये दिल चाहता है एक बहुत कल्ट फिल्म, वहाँ से चेंज हुआ सब कुछ। तो आई कुड सेंस दैट, एंड वहाँ से मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा और करना चाहता हूँ। फिर मैं एक साल में एक फिल्म करने लगा। अच्छा। कि फिर मैंने सिटी लाइट्स एक की, फिर धीरे से एक की, फिर धीरे एक की, ऐसे। एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम एक्चुअली
enjoying this, and it's very therapeutic, and it gives me, it's actually complementing my writing, my travel, my everything. So I thought थोड़ा सा और सीरियसली लेता हूँ, बिकॉज मेरे को अगल बगल में मेरे जो भवन है, मेरा जो मैनेजर है, वो भी बीच में बोल देता है कि सर आप थोड़ा सीरियसली लो एक्टिंग. तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली एवरी टाइम आई गो वन स्टेप फर्दर डाउन. बट आपकी एक फिल्म जो मुझे खासा बहुत पसंद है वो है नेल पॉलिश. हाँ यार, बहुत मेहनत की थी यार, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म आपकी. मैं और मम्मा, हम लोग, मेरी मम्मा भी बहुत फिल्म्स देख, बॉलीवुड सिनेमा. मम्मा का मतलब उनका ये है कि वो मुझे ट्यूशन बंक कर आके पिक्चर दिखाती है. ठीक है, कि दिस इज एन एक्चुअल इंसिडेंट वेयर माई मॉम कॉल्ड माई मैथ्स ट्यूटर. शी सेड कि घर में इमरजेंसी हो गई है, स्नेहिल को घर भेज दो. स्नेहिल घर आता है, मम्मी ने, लाइट गई हुई है, बारिश हो रही है, मम्मी ने घर की सारी लाइटें बंद कर दी हैं ताकि इन्वर्टर से टीवी चल सके, और वो मुझे मैं आज़ाद हूँ दिखाने बैठा कि स्नेहिल ये पिक्चर तुझे देखनी ही पड़ेगी. सो मैं और मम्मा ऐसा मूवी मैराथॉन्स करते हैं बैठ के, एंड उसमें वन ऑफ द फिल्म्स दैट वी वॉच्ड वाज नेल पॉलिश. व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म. एंड उसमें जो आपने आखिरी 1 सेकेंड में जो आपने एक्सप्रेशन चेंज किया है वो बॉल से खेलते हुए, हम लोग आई थिंक रात के 2-2:30 बज रहे थे जब हम वो पिक्चर देख रहे थे. तो हम सारे ऐसे थोड़ा कंबल में हैं, इधर है ऐसे, और वो पिक्चर देख रहे हैं. एंड देन सडनली दैट लास्ट सीन कम्स एंड माय मॉम शाउट्स लाइक ओह, एंड आई एम लाइक क्या हुआ? मैं कह रही थी ये वैसा ही हाउ इज दैट, हाउ डिड दैट फिल्म हैपन? वो एक्चुअली कोविड के बाद का मेरा पहला काम था. तो आई वाज लाइक मतलब डाइंग टू एक्ट. होता है ना, एक हंगर था. एंड ये सबसे टफ रोल मेरे लाइफ में आज तक का था. और बिकॉज बग्स को मैं बहुत, हम मतलब वो भी थिएटर से हैं, उनके मैंने प्लेस देखे हैं, ह्यूज फैन ऑफ बग्स. और तो बग्स ने बोला कि मैंने तेरे लिए लिखी है, इफ यू से यस आई विल मेक दिस फिल्म, इफ यू से नो, तो मैंने कहा कि आई से यस, लेट्स मेक इट. बट उसने एक बग्स ने किया कि बग्स कहता कि यू प्ले, आई विल शूट. अच्छा. तो आई हैव नो सजेशन टू गिव. हाँ. तो मैंने कहा अरे एक आदमी है जो चलते केस में लड़की हो जाता है, कुछ तो हेल्प कर. मतलब यू आर नॉट गिविंग मी इवन साड़ी, सो मतलब कुछ तो कर कि आई विल, हाउ विल आई गो टू द अदर साइड. एंड अगर वो बिलीव नहीं होगा, फिल्म ही वर्क नहीं करेगी, फिल्म बैठ जाएगी. हाँ. तो मैंने कहा कैसे करूँ? तो आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग घर पे, ये वो. फिर हमने कुछ रीडिंग्स की बैंड्रा में, 1-2 उसके प्रोड्यूसर के ऑफिस में. एंड ही वाज सेइंग हाँ सही जा रहा है. मैंने कहा जा ही नहीं रहा कुछ भाई. एंड आई डोंट नो समहाउ, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि हम वही जो है ना, फेमिनिन साइड आपका एक होता है. और मुझे लगा कि जैसे मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं गांधी करूँगा तो मैं ऐसे ही गांधी करूँगा. क्योंकि इट इज़ हाउ आई फाइंड गांधी अमेजिंग इन हिज स्पिरिट, थॉट. और मैं मतलब अलग गांधी होगा लेकिन ऐसा गांधी होगा. तो मुझे लगा हाँ मैं फिर इसको भी ऐसे ही अप्रोच करता हूँ कि अगर मैं फीमेल होता तो मैं कैसा फीमेल होता, मैं कैसे देखता. एंड सडनली देयर आर सर्टेन मैनरिज्म दैट केम. और वो एक्चुअली आपको पता है, शूट के ठीक पहले मेरे को कुछ समझ आया. मैं शॉट में गया, मैंने कहा बस कर लेते हैं सीन. तो मैंने एक सीन किया पूरा. जब परफॉर्म हुआ तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे करना है. बिकॉज बिफोर दैट इन योर हेड समटाइम्स यू थिंक अ लॉट. तो इन योर हेड यू आर वे अहेड ऑफ व्हाट यू कैन परफॉर्म. तो मैंने कहा ऐसा नहीं करना है मुझे भाई. मुझे उतना ही रहना है जितना परफॉर्म कर सकता हूँ. एंड ऑल्सो आनंद तिवारी था वहाँ, दोस्त है मेरा बहुत अच्छा, अर्जुन रामपाल था. सो एवरीवन वाज लाइक देयर, बट ऑफ कोर्स लुकिंग एट मी लाइक कैसे, क्या करेगा, क्या हो रहा है. तो बट या तिवारी और हमने बहुत हेल्प किया मेरे को उसमें बीच में. ग्रेट. आई डेफिनेटली रेकमेंड दैट फिल्म. Z5 पे है आई गेस. Z5. डू वॉच इट. इट्स अ फैब फिल्म, इट्स अ फैब परफॉर्मेंस. एंड as we close, I just want to ask one thing जो सारे आपके followers, प्रशंसक, fans जानना चाहेंगे कि what next for Manav Kaul? Like what is he about to do? What are the next projects that you're doing? Are you going back to theater, books, या कोई एक लंबी वेकेशन जहाँ से आपका Instagram सर, मतलब जिम गोल्स आपका Instagram, राइटिंग गोल्स आपका Instagram,
पिक्चर गोल्स आपका इंस्टाग्राम? नहीं, मैं असल में जब मैं ट्रैवल करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करता हूँ. सो जैसे मैं स्कैंडिनेविया था 2 महीने, आई वाज ओनली राइटिंग, ड्रिंकिंग एंड मीटिंग अमेजिंग पीपल, और कुछ नहीं कर रहा था. मतलब बिकॉज मैं जाता हूँ जैसा देश वैसा भेष, मैं जहाँ जाता हूँ वैसे रहने लगता हूँ. तो वहाँ से मैं वापस आया तो जैसा दिख रहा था, जिम हिट करना बहुत ज़रूरी था दूर. मतलब आगे कोई काम नहीं देगा मुझे. तो क्या इतना वजन बढ़ गया था मेरा, एंड आई हैव टू लाइक एंड मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, सो आई लव टू रन, लव टू डू दिस. आई स्टार्टेड प्लेइंग जस्ट लॉन टेनिस. अभी बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे. सो वो 1 महीना मेरा नॉन स्टॉप रिग्रेस चलता है, सो दैट आई कैन कम बैक. तो अभी मेरे ख्याल से मेरे प्रोजेक्ट में मैं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कुछ प्लेस करना चाहता हूँ. बड़े समय बाद मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हुई, तो वी जस्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग, मीटिंग पीपल. एक तरीके का ना एक इंटरेस्टिंग लोग ग्रुप में हो और एक्साइटिंग कुछ काम चालू हो. तो मैं कुछ 2 अलग अलग प्लेस पे काम कर रहा हूँ. लेट्स सी कौन सा प्ले पहले होता है. तो एक तो वो कर रहा हूँ, कुछ फिल्म्स की हैं, एक अच्छी सीरीज़ की है जो बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है. तो आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड अबाउट माई न्यू वर्क, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जो इस समय जो काम किया वो मेरी एज एन एक्टर जर्नी का सबसे बेस्ट काम है जो मैंने अभी किया है. तो नेल पॉलिश और अजीब दास्तान वाले कैरेक्टर से बहुत ऊपर, बहुत आगे. सो मैं एज एन एक्टर बहुत ग्रो किया हूँ इस बीच. तो मुझे लगता है कि ये काम मैं भी देखना चाहता हूँ कि हाउ ऑडियंस गोइंग टू रिएक्ट, एवरीवन गोइंग टू रिएक्ट, एंड हाउ दिस इज गोइंग टू कम अप. सो वी आर बेसिकली होल्डिंग आवर आइज ऑन टू नेटफ्लिक्स, कि जहाँ पे आपका काम आने वाला है, एंड प्लेज ऑफ कोर्स. थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस विद अस. Again, as we close, I would again want to say, guys, जितना मैं insist कर सकता हूँ ना, I am trying to insist कि please go buy this book, read this book. It's a great book. इतना मैं अपने में इतना नहीं झांका, मैं उन मेमोरीज में कभी वापस नहीं गया जितना मैं इस किताब की वजह से गया. बट बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है. मैं अब कभी मतलब मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं बोलूँ कि भाई ये देखो किताब लिखी है. मेरे से होता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों को सबको एक कदम एक दूसरे के लिए बढ़ाना है. मैंने एक कदम बढ़ाया, मैंने लिखी है. पीपल शुड टेक वन स्टेप एंड बाय इट. सो आई डोंट लाइक सेलिंग इट दैट वे. बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगा था सबसे कम ये वाली किताब पढ़ी जाएगी. एंड मैं जब दिल्ली में गया इधर, क्योंकि डेथ पे कौन किताब पढ़ना चाहता है ना. मैं दिल्ली में गया अभी, मैंने एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट किया देहरादून में जब मैं था जी, और मैं सरप्राइज रह गया कि कितने यंगस्टर्स हैं जो इसको शिद्दत से पढ़ रहे हैं, जिस शिद्दत से मैंने उन किताबों को पढ़ा है जिनका जिक्र इसमें है. तो मुझे इतना अच्छा लगा, और जो द काइंड ऑफ लेटर्स आई गेट, काइंड ऑफ जो इंस्टाग्राम पे लोग जो पोस्ट करके नीचे लिखते हैं, इतना हार्टफेल्ट नोट. और मैं हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज आई फील कि कोई आदमी ने फोटो खींची, पूरा पढ़ने के बाद गॉट सो मूव्ड दैट रोट समथिंग सो मच इन हिंदी. And there are people who have read Hindi for the first time, also started reading with this book or one of my writings. तो मुझे लगता है यार ये बड़ी, मतलब कोई अगर आपकी किताब पढ़ लेता है ना, तो ऐसा लगता है कि एक शेयर्ड एक्सपीरियंस हमारा है और एक जिम्मेदारी है. तो एक अपनापन आ जाता है कि जो मैंने शेयर किया है वो उसकी लैब पे था और वो भी शेयर किया उसने भी, सुनो. सो वो शेयर्ड एक दोस्ती हो जाती है. तो मेरे को वाला रिश्ता बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. और या पढ़िएगा जिसको अच्छा लगता है पढ़ना, ज़रूर पढ़िएगा. एंड सर का इंस्टाग्राम है, यू वांट टू प्लग योर इंस्टाग्राम, या सबको पता ही है? पीस आउट यार, पीस आउट. ठीक है, क्या करना है इंस्टाग्राम. पीस आउट. हमारा जो चैनल है दैट इज IVM Pop ऑन यूट्यूब, एंड इंस्टाग्राम पेज भी IVM Pop. शो इज Pop Rap. दिस एपिसोड विल बी आउट सून. And yes, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you everyone. So guys, that was the episode with Man of Call. I hope you had fun. हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करी है. एंड जो सबसे बड़ा रेवलेशन है कि जावेद जाफरी और वो सेम फ्रेम में नहीं थे. कैसे बोल रहे थे वो आदित्य. But guys, if you enjoyed this, we've done a bunch of other celebrity episodes. One is with Bhuvan Arora, one is with the cast of Class, one is with Sohail Nayyar, Harshita Gaur, Raveena Sharma, and one is with Tony Kakkad and Yohani. Do check those out. Subscribe to this channel, and if you're listening to this on audio,
do follow this on your on whatever audio platforms you're listening, and drop a comment, drop suggestions ki who you would want to see on Pop Rap next and what you would want us to talk about. See you in the next episode. Bye bye.